A very good morning to my friends of class 12th. Today we will be learning in this video about Earth's magnetic field. What is it? The topic today for is Earth's magnetic field. What we will learn about the Earth's magnetic field? First we will learn about what is this, how does it function, and second thing, what is the cause of Earth's magnetism, and third, that what are the different mathematical elements of this Earth's magnetic field so that we can calculate it. Okay, so first we start with the characteristics of Earth's magnetic field. The first thing is characteristic. Okay, see, first of all, this is the globe which you have seen. Now on this globe, these are latitudes and these are the longitudes, right? Earth spins on its axis, and the axis, which axis? It is this axis. When this axis touches the Earth's surface, this pole we call as the geographic North Pole, and when the axis touches over here, we call it the geographic South Pole. Now, the Earth is spinning, or Earth is rotating about this axis. Earth has got its own magnetic field. Earth has got its own magnetic field. Suppose at this place or any other place in the world I go and I have a magnetic compass with me, what will happen? If I freely suspend that compass will point towards north and south directions. This we already know. ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक कंपास को हम फ्री छोड़ देते हैं तो वो अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन दिखाता है. कैसे दिखाता है? सपोज इफ दिस इज दैट स्मॉल कंपास, तो दिस पॉइंट विच इज द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, ध्यान से सुनना, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विच विल इंडिकेट साउथ डायरेक्शन. ठीक है, अब ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ये थोड़ा सा गलत होता है. क्यों गलत होता है? बिकॉज इन मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल विल रिपेल and south pole will repel, but south pole and north pole will attract. So if this point is the north pole of magnet, it directs, it shows the north geographic pole of earth. That north geographic pole must be its magnetic south pole. जिसको हम ज्योग्राफी में नॉर्थ पोल बोलते हैं, उसको मैग्नेटिज्म में हमें मैग्नेटिक साउथ पोल बोलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल से ही अट्रैक्ट होगा और मैग्नेटिक साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से ही अट्रैक्ट होगा. बट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कन्वेंशंस, this is geographic north, this is geographic south. According to the magnetic convention, geographic north will be actually the magnetic south and geographical south will be magnetic north. पहली ये चीज. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर तक जाती है. टिल व्हाट डिस्टेंस अबाउट द अर्थ सरफेस डू यू फील द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ? इट इज 3200 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस. मतलब इतना तक तो मिलती ही है, राइट? What I mean to say is, if this is the Earth's surface, you go up to a distance of 3200 kilometers. Till there, Earth's magnetic field is present. वो उससे ऊपर भी present हो सकती है, लेकिन minimum distance उतनी present होती है. ठीक है. अब why the distance? Somewhere it is more than 3200, somewhere it is less than 3200. तो ये होता है solar winds की वजह से. What is a solar wind? See. There are many nuclear reactions which are taking place on solar wind, and due to that reactions, a group of charged particles is emitted. जिस तरह से विंड चलती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सोलर विंड में भी छोटे छोटे आयोन्स आते हैं. ये आयोन्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं. तो क्या होता है? ऑन सम साइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स कंप्रेस्ड, एंड ऑन द अदर साइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, the range increases. Here the range will decrease, here the range will increase. Okay, so magnetic field of earth is also disrupted by the solar winds. There are other effects also. See, not only this effect, but day and night
उनकी मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफरेंस होता है। दिन में जो मैग्नेटिक फील्ड आप मेजर करते हो, रात में मेजर करो, देयर विल बी ए लिटिल डिफरेंस इन दैट, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजंस ऑल्सो। समटाइम्स दिस इज विंटर सीजन, सो विंड्स आर ब्लोइंग वेरी फास्ट, वहां पे ड्यूरिंग दिस टाइम magnetic field will be different. If you measure the same magnetic field in summers, again magnetic field will be different. So it is affected by day and night, it is affected by seasons, it is affected by the presence of sun also. So these are very small and what to say, the very significant characteristics of Earth's magnetic field. Okay, now what is the cause of Earth's magnetic field? Why is Earth behaving like a magnet? Why is Earth behaving like a magnet? Now see, this is magnetic south pole of Earth. We are not studying geography, so I will not be writing geographic north pole and geographic south pole. I will be referring to them as magnetic north and this is magnetic south. See, the magnet which is inside the earth, अगर हम ये imagine करें कि earth के अंदर जो magnet पड़ा है वो एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, a very huge bar magnet is placed inside the अर्थ, तो वो मैग्नेट सीधा नहीं है, द मैग्नेट इज नॉट स्ट्रेट, द मैग्नेट इज समवॉट टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा है इस तरह से, राइट। सो इफ दिस इज द जियोग्राफिक साउथ पोल विच इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, देन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज एट ए लार्ज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम से कम अर्थ के सरफेस पे 1700 किलोमीटर जितना बड़ा है, एंड दिस इज the geographic north pole, this will be magnetic south pole. ये जो distance है, this distance is about 200 kilometers, right? So we can say that the magnetic field of earth is not exactly symmetrical, it is somewhat tilted, ठीक है ना। ये मार्कर की तरह सीधा नहीं है, ये मेरे हाथ की तरह थोड़ा सा कर्व्ड मैग्नेट है, थोड़ा सा हॉर्सशू शेप आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की बनी है, what is the cause? There were various causes given by different research fellows, different scientists at different times. The first theory was core theory. The first theory was core theory. According to the core theory, we know that Earth's core is made up of molten metals. ठीक है, अर्थ के ऊपर ठंडा रहता है, अर्थ के बीच में जो है वो क्या है, कोर है, और इस कोर के अंदर क्या है, कोर के अंदर बहुत सारे मोल्टन मेटल्स हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, आयरन है। वी नो दैट आयरन इज हाईली मैग्नेटिक मटेरियल, सो पीपल यूज्ड टू से दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एट द कोर ऑफ अर्थ, दिस इज मैग्नेट, this core of earth is magnetic, and because of this core of earth is magnetic, its magnetic field is felt all around the globe. But this theory is a wrong theory. Why? Because the temperature of earth's core is very large. इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि मैग्नेटिक फिनोमिना वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फिनोमिना या मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर इज द टेम्परेचर, लोअर विल बी द मैग्नेटिक फिनोमिना, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट द कोर इज सो हाई दैट मैग्नेटिक फिनोमिना ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। सो कोर थियरी इज रॉन्ग थियरी। द सेकेंड थियरी वॉज अबाउट द आयरन डिपॉजिट्स, ठीक है। कुछ लोग बोलते थे कि भाई अर्थ के ऊपर कुछ जगह हमें आयरन डिपॉजिट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहां पे ज्यादा हो गए, यहां पे ज्यादा हो गए, ठीक है। सो व्हेनेवर आयरन डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, आयरन डिपॉजिट्स किस फॉर्म में होते हैं, आयरन के दो वो होते हैं Fe2O3 एंड Fe3O4, इस फॉर्म में हमें आयरन मिलता है। नाउ द थिंग इज दैट आयरन when it is free from other elements, when it is pure, only then it is magnetic. थोड़ी सी impurity होती है तो आयरन जो है वो मैग्नेटिक होता है, लेकिन ऑक्साइड के साथ में जब ये कंबाइन करता है, हमें अर्थ पे इन्हीं दो फॉर्म्स में आयरन मिलता है, फिर हमें इन्हें प्रोसेस करके आयरन को अलग करना पड़ता है। सो इन नेचर आयरन इज प्रेजेंट इन दीज टू compounds, it is present in form of these two compounds, and these two compounds are completely non-magnetic, ठीक है। तो आपका ये जो आयरन डिपॉजिट वाला थियरी है ये भी गलत हो गया, ठीक है। दूसरा आयरन डिपॉजिट वाला थियरी इसलिए भी गलत होता है बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दीज आयरन डिपॉजिट्स अर्थ इज हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज बिकॉज of earth is having a magnetic field, iron ore is deposited in certain places. Clear? So second theory भी गलत हो गया। Third theory is the ionospheric theory. What is it?
ionospheric theory. According to this ionospheric theory, see, this is earth and this is the ionosphere. ठीक है, ionosphere you know इसमें बहुत सारे ions होते हैं, positive and negatively charged particles. Now winds are blowing, so these ionosphere particles are also moving in a certain direction. Because they are moving in a certain direction, ये तो पता है ना आपको. If the current appears like this, this will be the north pole. उसके पीछे चले जाओगे, the current appears like this, which will be the south pole. Okay, so earth ionosphere is made up of charged particles. These charged particles are circulating, and circulating charged particles from currents produce magnetic field. Right? Okay, now this theory is something very important. देखो इस मैग्नेटिज्म में, अर्थ मैग्नेटिज्म में इतना जल्दी इतना सारा रिसर्च हुआ है. आई वेरी वेल रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज हमें ये वाली थियरी पढ़ाई जाती थी, आइनोस्फीयर वाली थियरी, एंड दे यूज्ड टू से दैट दिस वाज करेक्ट. उन्होंने बोला था कि ये सही थियरी है. ठीक है, अब मैं कॉलेज में कौन सा था, कॉलेज में मैं था 1997 के अंदर. ओके, so in my college days this theory was supposed to be the correct theory, and our professors used to teach us that ionospheric theory is correct. But when I became a teacher, and this is year 2020, 23 years हो चुके हैं इस बात को, now they are coming to conclusion that ionospheric theory is wrong theory. ठीक है, तो फिर सही थियरी कौन सी है? सही थियरी के लिए फिर से हमें कोर पे जाना पड़ेगा. ओके, द रीजन लाइज इन द कोर. राइट, अब फिर से हम कोर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? कोर थियरी तो हमने गलत कर दी थी. ठीक है, कोर थियरी वाज रॉन्ग बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स. ठीक है, अभी देखो इस हाई टेम्परेचर की वजह से ही कोर थियरी सही मानी जाएगी. जस्ट लुक एट दिस. सी, दिस इज अर्थ, दिस इज द कोर ऑफ अर्थ, दिस इज सरफेस एंड दिस इज कोर. इन दिस कोर द टेम्परेचर इज वेरी हाई. ठीक है, अभी देखो हाई टेम्परेचर से क्या होता है. इफ यू हैव ए सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ाओ इट बिकम्स लिक्विड, और टेम्परेचर बढ़ाओ इट बिकम्स गैस, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस टर्न्स इनटू आयंस. इतनी ज्यादा एनर्जी होती है गैसेस का टेम्परेचर अगर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है दैट the atoms they get ionized. अभी क्या होता है, अर्थ इज एक्चुअली रोटेटिंग, और इसकी कोर भी रोटेट हो रही है, लेकिन इसके कोर का रोटेशन थोड़ा सा स्लो है. जैसे सपोज करो आपने कोई एक बड़ा सा यूटेंसिल लिया, कोई पतीला लिया, उसके अंदर दूध रखा हुआ है. राइट, दूध के ऊपर मलाई जमी हुई है. ठीक है, अभी आप उस पतीले को धीरे धीरे रोटेट करो. ठीक है, उसको घुमाओ, ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो व्हाट यू विल सी दैट द यूटेंसिल इज रोटेटिंग ए बिट फास्टर, एंड द मिल्क इनसाइड इट, द लिक्विड इनसाइड इट, इट इज रोटेटिंग ए लिटिल स्लोअर. आए समझ में? सो दिस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दिस इज मूविंग वेरी फास्ट, दिस इज मूविंग वेरी स्लो. इसका वेलोसिटी वेक्टर यहां पे बड़ा होगा, और कोर का वेलोसिटी वेक्टर यहां पे लोगे तो थोड़ा सा छोटा होगा. सो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. ओके, so when there is a relative motion, what is produced? अच्छा, किसका relative motion हो रहा है? चार्ज का relative motion हो रहा है. ठीक है, चार्ज का मोशन होगा तो क्या मिलेगा? करंट से क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. ठीक है, सो दिस इज सपोज टू बी, अभी 2020 के अंदर मैं आपको बता रहा हूं दैट दे आर थिंकिंग दैट दिस इंटीरियर कोर थियरी इज करेक्ट थियरी. ऑलराइट, this is all for now. In the next video we will be taking care, we will be learning the different elements of Earth's magnetic field.